एपिसोड 2 एंड वी आर डन। हमने हो चिंग मिंग सिटी में एक दिन में जितना कवर हम कर पाए हमने। वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा छोटा सा एक स्कैम हो गया था। जैसे हाय एवरीवन, दिस इज एपिसोड 2 ऑफ आवर वियतनाम सीरीज। तो क्योंकि चेक इन टाइम 2 बजे का है हमारे होटल में, मोस्टली सारे होटल होते हैं, तो हमें तो रूम नहीं मिला। तो पास ही में वॉर म्यूजियम था, तो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर द वॉर म्यूजियम। तो अभी हम वॉर म्यूजियम आ चुके हैं। और ऑनेस्टली वियतनाम आके हम सिर्फ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। वी ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट द कंट्रीज़ हिस्ट्री, और इसी वजह से हम यहाँ आए। वी ऑल्सो टुक द ऑडियो गाइड बिकॉज हमें लगा कि सिर्फ एग्जिबिट देखने से बेटर है कि उनके पीछे की स्टोरी भी समझें। द ऑडियो गाइड कॉस्ट अस अप्रॉक्स 600 per person, and honestly this place was quite impactful, I must say. we are at War Museum now, and we paid almost 150 per head, I think 145 or 150 per head with audio guide. And actually, War Museum is a significant part of Vietnam. It depicts the war of Vietnam with real photographs, exhibits, and equipment. So you can see in the video all the equipments and real photographs inside. So we have taken with an audio guide. So let's experience the complete war museum. This is the entrance, and you can see few souvenir shops right at the entrance. And this was our audio guide machine, which you need to put into your ears the same way he is doing. And we are all set. सो हम लोगों ने ये ऑडियो गाइड ले लिया है इंग्लिश लैंग्वेज में. सो दे आर अराउंड 2 or 3 फ्लोर्स इन टोटल व्हाट वी हैव टू गो थ्रू. तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर में हैं एंड वी विल स्टार्ट इट. लेट्स एक्सप्लोर द वॉर म्यूजियम. कम ऑन. यहाँ फोटोग्राफ्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफरेंट एग्जिबिट के थ्रू वियतनाम वॉर और उसके आफ्टरमैथ को डॉक्यूमेंट किया गया है। कुछ फोटोग्राफ्स जेन्युइनली बहुत पेनफुल थे। द म्यूजियम प्रेजेंट्स द हिस्ट्री प्राइमरीली फ्रॉम अ वियतनामीज perspective. But if you genuinely enjoy history and want to understand more about Vietnam, I would definitely recommend keeping this on your itinerary. So we are at War Museum's cafe, and we have taken cold coffee without condensed milk, fresh milk, and sugar, and one medium spicy cup noodles. So total, I think it costed about rupees 300 INR. And let's taste the coffee. Yeah, I mean, it's like any other cold coffee, but fine, good. After coffee, we wanted to grab something to eat. And I'm trying their local broad beer. It's very light, very mild, very nice. Thank you. We decided to try this local cafe, and he ordered Com Ching Lam Zuang. Basically, it's a fried rice with Vietnamese Chinese sausage. And it was good, pretty good. And I decided to play safe and order egg and bread. But guys, the bread was honestly not great at all. You can check my expression. And egg was without salt. But maybe it's just we are used to more seasonings. But this is the fun part of traveling, right? Not everything you try is going to be your favorite. कभी फूड अमेजिंग होता है और कभी एवरेज, और कभी आपको बस सॉल्ट की तलाश होती है. After our little food adventure, we headed to the Saigon Central Post Office, and this was actually one of the cutest experience of the morning. यहाँ आप पोस्ट कार्ड या कोई सोवेनियर टाइप आइटम बाय कर सकते हो
वहीं बैठकर अपना मैसेज लिख सकते हो और फिर एक्चुअली उसे पोस्ट भी कर सकते हो। आज के टाइम में जब एवरीथिंग इज़ व्हाट्सएप, राइटिंग एन एक्चुअल पोस्ट कार्ड फील्स सो डिफरेंट। इमेजिन किसी को वियतनाम से एक पोस्ट कार्ड मिले इंस्टेड ऑफ जस्ट अ व्हाट्सएप मैसेज सेइंग रीच्ड वियतनाम। It actually feels more personal, isn't it? And finally, we reached the place we had been waiting for, a beautiful Instagram viral cafe. And guys, this was not your regular cafe experience because यहाँ आपके ड्रिंक के साथ you get koi fish literally floating with you. Yes, आप ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो और around you these beautiful koi fishes are swimming. Or honestly, after walking around the city since 7:30 in the morning, this was the perfect place to finally sit down and relax. This whole vibe was so beautiful, just not the cafe, but even the food was really good. He tried fish fried rice with kimchi salad and यहाँ पे आपको हर जगह आइस टी दे गिव इट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। आई मीन आइस टी इज़ नॉट दैट ग्रेट बट इट्स समथिंग विच दे डू गिव एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। एंड देन मैं खा रही हूँ चिकन ग्रिल्ड राइस, किमची सैलड एंड सम काइंड ऑफ अ सॉस जो कि उन्होंने उसके साथ दिया है। And actually, the taste was really good. No complaints. The place, the food, and everything was too good. So the hype on Instagram is worth visiting. So the city is really beautiful. Mix of old and new historic buildings, colorful street, and endless scooters. And if you want to explore the city without walking everywhere, you can also take the Hola hop on hop off buses. But a day without adventure, how's it possible? So here is it. Day 1 episode 2 and we are done. हमने हो चिंग मिंग सिटी में एक दिन में जितना कवर हम कर पाए हमने पूरा कवर कर लिया है और अब हम भयानक टायर्ड हो चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, सो मैंने जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो मैंने बोला था कि हमने एयरपोर्ट से ही हमें ग्रैब मिल गए हैं और 2000 रुपीज़ लगे हैं ग्रैब में। बट वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा छोटा सा एक स्कैम हो गया था। सो जैसे मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट्स में जैसे बैंगलोर में या दिल्ली में ओला, उबर या फिर क्विक राइड के जो भी क्यू होते हैं उसमें उन्हीं के लोग खड़े रहते हैं विद देयर आईडी कार्ड्स, तो हम उनसे भी बुकिंग करवा सकते हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉड। तो सेम थिंग हैपेंड है। हम जब एयरपोर्ट में एग्जिट गेट से बाहर निकले तो हम ग्रैब ही बुक कर रहे थे क्योंकि हमने लंकावी में भी काफ़ी ग्रैब यूज़ किया था एंड इट्स क्वाइट एन ईजी ऑप्शन और बहुत कन्वीनियंट भी है और बहुत बजट ट्रैवल भी है। तो हम बुक कर रहे थे तभी अ गाय केम विद एन आईडी कार्ड जो ग्रैब का आईडी कार्ड था। तो हमें कोई शक भी नहीं हुआ एज सच एंड उसने मेरे से फ़ोन लेके बोला कि मैम आपको टाइम अगर लग रहा है तो मैं आपका मतलब आई विल बुक ऑन बिहाफ ऑफ यू। एंड देन सडनली ही स्टार्टेड बुकिंग अपने फ़ोन पे। तो हमें लगा कि ऐसे ही नॉर्मली भी होता ही है क्योंकि बैंगलोर में भी क्विक राइड का 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो वो बुक कर देते हैं एंड देन फ़ोन नंबर लेते ही मेरे ऐप में शो करने लगता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ और डाल दी, तो जिसकी वजह से आई मीन हमें कोई परेशानी नहीं हुई बट द ओरिजिनल प्राइस जो हमें बाद में जब हम रास्ते में थे तो हमने फिर से देखा तो ओरिजिनल प्राइस जो दिखा रहा था दैट वाज 700। बट देन क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग जो पॉइंट था उन्होंने गलत डाला और थोड़ा लंबा डाल दिया तो हमें इंस्टेड ऑफ 700 हमें 2000 रुपीज़ उसमें लग गए। तो ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और आइडिया ही नहीं था, हमने कहीं ऐसा सुना नहीं था। तो पहले मुझे लगा कि दीज आर आवर एयरपोर्ट टैक्सेस, बट देन हमने टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के भी देख लिया। तो क्योंकि हमारा जो होटल है दैट वाज जस्ट 4.5 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, तो हो चिंग मिंग एयरपोर्ट। तो तब हमें पता चला कि ये हो गया थोड़ा सा 1000 टाइप्स का स्कैम हुआ है, 1200 का।
तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो या तो आप अंदर से ही कैब ले लीजिए या फिर ग्रैब से आप खुद ही बुक कर लीजिए. डोंट रिलाई ऑन एनी वन की इवन इफ दे आर वेयरिंग ID कार्ड. सो दैट्स द ओनली थिंग. ओके, बाय बाय.